Hello everyone, welcome back to the class. So today we'll be discussing set 2 of practice questions of Rashtriya Military School 2017 paper, right? I have discussed set 1 in previous class. Kindly visit the video to have a look on the question paper. I would like to inform all of you that Geometry School has started giving live classes for RIMC, RMS and AISSEE examination. I would request all of you to join those live classes. Kindly visit the link. Here is the link. You can visit the website. Also, you can download the app from the Play Store. Do join the live classes if you people are appearing for RMS 2020-22 examination. For the preparation, a champion batch has been started by Geometry School where you will be provided with daily live classes till your exam is there. Then you'll be given current affairs, you'll be having mock tests for your practice, and also there will be live tests taken by the teacher concerned, right? Do visit the website because there only you will get the information about the examination and also for your live classes and the batch provided by the school. Moving on to our class. So today we'll be having RMS previous year paper 2017 part 2 and this will be for class 6. पेपर पैटर्न यू ऑल नो 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स ईच के. दिस विल बी योर पेपर 2017. विल बी हैविंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स ईच. जस्ट लुक एट द सेक्शन ऑफ मैथ्स. 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स ईच, राइट? सो मैथ्स की टोटल वेटेज कितनी हो जाएगी? 50. परफेक्ट. मूविंग ऑन टू क्लास. So just till question number 165 I have discussed it in the previous video. If you have not visited that video, do visit that video so that you can have a brief idea of the previous year questions. So in this video I'll be discussing from question number 166. Read the question here, try to solve it yourself. How many 250 gram sugar packets can be packed out of 12.5 kg sugar? ठीक है? That means आपको शुगर की क्वांटिटी दी हुई है. वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 166. क्वेश्चन नंबर 166 में टोटल क्वांटिटी ऑफ शुगर कितनी गिवन है? टोटल शुगर क्वांटिटी कितनी गिवन है? 12.25 kg. 12.25 kg आपको शुगर क्वांटिटी गिवन है. ये और बोला है हाउ मेनी 250 ग्राम शुगर पैकेट्स. हमें कितने पैकेट्स प्रिपेयर करने हैं? पैकेट्स टू बी प्रिपेयर्ड, नहीं सॉरी, इट शुड बी वेट ऑफ पैकेट्स टू बी प्रिपेयर्ड. कितना होना चाहिए? 250 ग्राम्स. इफ यू चेंज इट इनटू केजी, व्हाट यू डू? 0.25 kg का हमारा एक पैकेट होना चाहिए. ठीक है, 0.25 kg का आपका एक पैकेट होना चाहिए. सो आपको टोटल शुगर कितनी दी हुई है? 12.25, राइट? और आपको एक पैकेट 0.25 kg का बनाना है. सो यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैकेट्स कि 0.25 kg के हमारे कितने पैकेट्स बनेंगे. ठीक है, तो जब टोटल क्वांटिटी दी होती है अपॉन वेट ऑफ वन क्वांटिटी तो आपका नंबर निकल के आता है. देयरफॉर नंबर ऑफ पैकेट्स विल बी कितने होंगे? 12.25 आपकी टोटल क्वांटिटी थी एंड हमें 0.25 का एक पैकेट बनाना है.
जस्ट रिमूव द डेसिमल्स, पॉइंट दोनों के बाद, डेसिमल्स के बाद दोनों के पास दो दो डिजिट्स हैं, तो जस्ट कैंसिल देम आउट. व्हाट यू विल बी हैविंग, यू विल बी हैविंग 1225 अपॉन 25. 5 से कैंसिल करना चाहते हो तो 5 से कर दो, अदरवाइज इट्स बेटर टू कैंसिल विद द हेल्प ऑफ 25 बिकॉज उसमें टाइम कम लगेगा और हमारा जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगा. So 25 fours are 100, 25 9, 25 1. So how many packets you can prepare of 0.25 kg? You can prepare 49 packets. So what will be your answer? Your answer will be 49 kg. Okay. Moving on to next question, number 167. So read out the question. Take the screenshot first. This will be your question number 167. Read it. Read out the question, please. Everyone, take the screenshot. So this will be the question. Yes. In a school, the strength of students from class 1st to class 5th are इतना. तो सबको दिया हुआ है कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स थे, 3, 4, 5 में कितने स्टूडेंट्स थे. If each student contributes ₹17 for a function, then find the total amount collected for the function. तो फंक्शन के लिए कितना टोटल अमाउंट कलेक्ट हुआ है, this you need to calculate. Right? So this is question number 167. स्ट्रेंथ दी हुई है, सो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल स्ट्रेंथ, सारी क्लासेस की मिलाकर कितनी स्ट्रेंथ है. विल ऐड देम अप. 29 प्लस 43, 43 प्लस 38 प्लस 26 प्लस 34. Calculate it yourself. Comment me the answer. I am here just to provide you the solution. But if you talk about the practice, it's up to you how you are practicing. If you really want to clear the exam, if you people are really desperate for exam, just be in regular practice. So just sum them up. What you will get? You will get 170. दिस इज द टोटल स्ट्रेंथ, मतलब सारे बच्चों को मिला के हमारे पास 170 स्टूडेंट्स थे. ठीक है. अब एक का कंट्रीब्यूशन कितना था. इफ आई टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन बाय वन चाइल्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन चाइल्ड कितने दिए, 17 रुपीज टोटल. और हमारे को तो कंट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी हमारे पास, 170. और एक बच्चे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 17 रुपीज. तो यू विल बी हैविंग 2890. दिस विल बी योर आंसर. तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना होगा, 2890. व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड इज 2890. व्हाट विल बी योर आंसर, 2890 will be your answer. Moving on to next question, question number 168. I hope you all have taken the screenshot. What is question number 168? If P is to Q is 3 is to 4 and Q is to R is 8 is to 9, then you have to calculate the ratio of P is to R. Okay. Question number 168. P is to Q कितना दिया हुआ है, 3 is to 4. So write it here. P is to Q is 3 is to 4. And Q is to R 8 is to 9. You need to find what? P is to R. Very simple. Just multiply both of them. It's P is to R. देखो
P अपॉन Q इंटू Q अपॉन R, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचेगा, P अपॉन R ही तो बचेगा. Therefore putting the values 3 upon 4 into 8 upon 9, 3 1 3 4 1 2, 2 upon 3 will be your answer. So what will be your answer? 2:3, right? Moving on to next question, complementary angle of 45 degree. These kind of questions are very important. मैंने सारी जितनी भी previous videos करी हैं, at least हर सेट में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इट्स जस्ट द एग्जामिनर वांट टू चेक वेदर यू पीपल नो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री का एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो हमें पता है सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री. सो एक आपको एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसरा आपने ले लिया x डिग्री एंड देयर सम इज 90 डिग्री. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 विल बी 90 विल बी, सॉरी हाँ, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 45. सो योर आंसर विल बी 45 डिग्री. ओके, moving on to question number 170. The area of a circle is 100 times the area of another circle. What will be the ratio of their circumference? तो अब आपको दो दो सर्कल दे दिए हैं. Okay, so what is the question? Just read the question here. The area of a circle is 100 times the area of another circle. What will be the ratio of the circumference? हमें circumference का ratio निकालना है. So area of circle 1, area of circle 1 2 pi r, area of circle 2 2 pi r. भाई रेशियो रेडियस तो दोनों का अलग अलग होगा ना, तो एक का स्मॉल आर हो गया और एक का कैपिटल आर हो गया. ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स एरिया ऑफ अनदर सर्कल. दैट मीन्स एक सर्कल का एरिया सपोज 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 100 टाइम्स एरिया ऑफ अनदर सर्कल विच इज 2 पाई आर. यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस. इसको इधर ले आते हैं, 2 पाई आर अपॉन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 1, है ना. सो कैंसिल आउट 2 पाई r अपॉन r comes out to be 100 upon 1, which is your answer. So what is your answer? 100:1 will be your answer. Moving on to question number 171. Read the question. A girl secures 375 marks in an examination. Her percentage is 75%. The maximum marks are, ठीक है. We are on question number 171. Let me read the question. A girl secures 375 marks in an examination. Her percentage is 75%. The maximum marks are, okay. You need to find the maximum marks. We are on question number 171. Marks obtained कितने आए थे? 375. और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन परसेंटेज कितने आए थे? परसेंटेज में उसके कितने आए थे? 75%. दैट मीन्स अगर हम इन दोनों को देखें तो दोनों सेम चीज़ हैं, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए.
लेकिन ये 75% किसका भाई, हमने मैथ्स का एग्जाम था 100 मार्क्स का, मेरे 25% मार्क्स आए हैं। दैट मीन्स मेरे कितने मार्क्स आए हैं, 25 मार्क्स आए हैं। कैसे निकाला आपने, 25% ऑफ जो मैक्सिमम मार्क्स थे उसका, तभी तो पता चला कि आपके मैथ्स में 25 मार्क्स आए हैं, ठीक है। स्कूल की भी जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो व्हाट यू पीपल डू कि मैम आई स्कोर्ड 85% इन माय 10th एग्जाम, राइट। सो व्हाट यू डू, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे, यू टुक that marks as denominator, you put the percentage value as numerator, and you just multiply this percentage with the total number of marks that you obtained, right? Similarly हम यहाँ पे करेंगे, so let maximum marks be x, यही आपको निकालना है। हम कह सकते हैं 75% आए हैं किसके, मैक्सिमम मार्क्स के, और एक्चुअली में दिस 75% किसके इक्वल था, 375 के। तो आपका x कितना आएगा, कैंसिल आउट विद द हेल्प ऑफ 25, 25 3, 25 1 जा 25, 15 कितना आया, 1500, आई मीन 15, 3 1 जा 3 5, आंसर कम्स आउट टू बी 500। What is your answer? Maximum marks कितने थे, 500। If you have any doubt, kindly leave the comment below. Don't feel shy कि मैम क्या बोलेंगी, प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है, जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर। Now moving on to next question. An airline owns 6 aeroplanes. Every aeroplane they own has 9 rows of seats with 3 seats in each row. बहुत confusing question है, read it very carefully. 6 aeroplanes थे, ठीक है। कितने एरोप्लेन्स थे, 6 एरोप्लेन्स थे। Every aeroplane they own has 9 rows of seats. एक एरोप्लेन में 9 रोज थी और एक सीट में 3 पैसेंजर्स थे, ठीक है। 9 रोज ऑफ सीट्स, मतलब कि ऐसे करके 9 रोज थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज हैं। और एक रो में एटलीस्ट 3 पैसेंजर्स कैन सिट, नॉट एटलीस्ट, सिर्फ एग्जैक्टली 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं एक रो में, राइट। सो व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू इज, ऐसे 9 रोज थी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज हैं। और एक रो में एटलीस्ट 3 पैसेंजर बैठ, एटलीस्ट नहीं, एग्जैक्टली 3 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको पता ही है आपको क्या करना है। ईच एरोप्लेन मेक 6 फ्लाइट्स अ डे, और एक एरोप्लेन 6 फ्लाइट्स करता है। हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन द एयरलाइन कैरी ईच डे, तो एक दिन में एयरलाइन कितने पैसेंजर्स कैरी करेगी, यू नीड टू कैलकुलेट दिस। $172। सबसे पहले क्या क्या गिवन है, एरोप्लेन्स ओन कितने हैं, कितने एरोप्लेन्स थे, 6 एरोप्लेन्स थे, गुड। एवरी एरोप्लेन हैज 9 रोज, रोज कितनी थी टोटल हमारे पास, हाउ मेनी रोज आर देयर, 9। और ईच रो में हाउ मेनी सीट्स, 3 सीट्स, राइट। ईच रो में 3 सीट्स थी, ठीक है। अब आपको निकालना है कि कितने पैसेंजर्स एक दिन में कैरी कर सकती हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स द फ्लाइट कैन कैरी ईच डे, ओके। सो टोटल रोज हमें पता है 9 है, एक रो में 9 सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स कितनी होंगी, सबसे पहले तो टोटल सीट्स निकालो, टोटल सीट्स कितनी होंगी भाई, एक रो में 3 सीट्स हैं, तो 9 रोज में कितनी सीट्स होंगी, 27 सीट्स, राइट। अच्छा, अब टोटल फ्लाइट्स, एक उसने बोला है ना एक प्लेन 6 फ्लाइट करता है, सी
every aeroplane has 9 rows of seats with 3 seats in each row. Each aeroplane makes 6 flights. एक एरोप्लेन 6 फ्लाइट्स करता है और टोटल एरोप्लेन कितने थे 6, तो कितनी फ्लाइट्स हो गई भाई, एक एरोप्लेन ने 6 करी और ऐसे हमारे पास 6 एरोप्लेन है, दैट मीन्स 36 फ्लाइट्स हो गई हैं। ठीक है, अब 36 फ्लाइट्स हैं, एक एरोप्लेन में 27 सीट्स हैं, तो टोटल पैसेंजर्स कितने होंगे, भाई जितनी सीट्स होंगे उतनी तो पैसेंजर्स होंगे, दिस इज अ कॉमन सेंस। जितनी सीट्स होंगी भाई, अगर आपके एरोप्लेन की कैपेसिटी 10 सीट्स है, दैट मीन्स उसमें 10 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। हमारे पास 27 सीट्स हैं, तो अगर एक फ्लाइट में 27 सीट्स जा सकती हैं तो 36 फ्लाइट्स में कितनी सीट्स जाएंगी, 27 into 36, what you'll be getting, you'll be getting 972 seats, that means passengers। भाई जितनी सीट्स होंगी उतने तो पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो 972 will be your answer, 972। Moving on to question number 173, take the screenshot of the question. This is your question number 173. A shopkeeper mixed 4.8 kg of cashew nuts with 0.4 kg of raisins। ठीक है, 4.8 kg काजू को मिलाया और 0.8 किसको मिलाया, किशमिश को। He packed the mixture equally into 4 boxes। उसने कितने बॉक्सेस में पैक किया उसको, 4 बॉक्सेस में पैक किया। What is the weight of each box? ठीक है, एक बॉक्स का कितना वेट था, this you need to find। क्वेश्चन नंबर 173, कैश्यू का वेट कितना था, वेट ऑफ कैश्यूज 4.8 kg, राइट। वेट ऑफ रेजिन्स का वेट कितना था, 0.48 kgs, राइट। अच्छा, तो आपके पास टोटल वेट मिल गया, आपको कितना हो गया, 0.48 प्लस 4.8, व्हाट इज द टोटल वेट, 5.28। ये टोटल वेट था। अरे 4 बॉक्सेस में हमें उसे पैक करना है, तो 4 बॉक्सेस 5.28, तो वेट ऑफ 1 बॉक्स कितना होगा, will be 5.28 upon 4, what will be the answer, 1.32 kg। this will be the weight of 1 box। ठीक है, 1.32, is that okay? Moving on to question number 174, this is your question number 174। This is a simplification question, right? So this is your simplification question, question number 174। What is the question? It's 22 minus question number 174, 22 minus 24, solve it very carefully because so many brackets are given to you, you have to solve each and every bracket very carefully, right। 14 minus 15 minus 8 minus 3, और 3 के ऊपर क्या है, बार है, closing all the brackets, comes out to be what, now this is board mass। ठीक है, बी board mass। ठीक है, ये जो B होता है इसका मतलब होता है बार, this B stands for बार। बाकी ये तो आपको पता ही है, ब्रैकेट्स एंड देन ऑफ, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं। अगर हमारी सिंप्लीफिकेशन में बार गिवन है, दैट मीन्स 22 माइनस 24 माइनस 14 माइनस, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, 24 माइनस 14 माइनस 15। अब बार किस किस के ऊपर है? बार है 8 और 3 के ऊपर, दोनों में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन। ये आ जाएगा, क्लोजिंग द ब्रैकेट्स अगेन, वी हैव 22 माइनस, अब हम कर्व ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 24 माइनस, अब ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, 15 माइनस 5 इज 10। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बी 22 माइनस 24 माइनस, दिस इज 14 नॉट 24, 14 माइनस 10 4, ये वाला ब्रैकेट भी क्लो। अब क्या आएगा? 24 माइनस 4 इज 20, comes out to be 2. What will be your answer? Your answer will be 2. Okay, moving on to question number 175. Which is the correct relation between x and y for x is equals to 0 and y is equals to 5? Okay, करेक्ट रिलेशन बताना है इफ x इज इक्वल्स टू 0 है एंड y इज इक्वल्स टू 5 है। दिस इज गिवन टू यू, चेक द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई, पुटिंग द वैल्यूज 3 इंटू 0 5 माइनस 5, क्या आ रहा है? 0 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। जब यहीं पे हमारा रिलेशन चेक हो रहा है तो हमें मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? ए विल बी योर आंसर, क्योंकि हमारा तो यहीं वेरीफाई हो गया है ना। तो जब हमारा यहीं पे वेरीफाई हो गया तो फिर आगे ऑप्शंस विजिट करके टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। सो विल मार्क दिस एज आवर आंसर। प्लीज रिमेंबर, क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड, अदरवाइज you will not be able to complete the question on time. So be very careful. You have to keep a pace between your accuracy and your speed. Moving on to question number 176. What is question number 176? Find the value root a into root a. root a और root a का multiplication होता है. So as you all know, जब two roots multiply होती हैं तो क्या निकल के आता है? You need to find root a into root a. डायरेक्ट आंसर करो, a होता है। जब टू रूट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका होल नंबर निकल के आता है। कैसे? a की वैल्यू क्या है? 1/2। a की वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है, आपने इंडेसेस में पढ़ा था। ठीक है, क्या होता है जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं? हमारी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2/2, दिस इज a की पावर 1, दैट इज 1। ठीक है, और अगर पावर की पावर होती है, पावर की पावर होती है तो आपकी पावर्स क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, दिस इज अ रूल। रूल के दिस इज अकॉर्डिंग टू रूल, ये जो मैंने चीज की है रूल में क्या है, अगर a की पावर m है और a की पावर मल्टीप्लाई a की पावर n है तो हमारे बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? हमारी ऐड होंगी। दिस इज व्हाट आई हैव अप्लाइड हियर, राइट। Moving on to question number 177. This is the question. Gavaskar scored 65 runs in first inning and 75 runs in the second inning of a match. Find his average score. These kind of questions are also very important. Average में से बहुत बार ये question आया है, ये question में भी मैंने बहुत बार आपको सॉल्व कराया है। सो प्लीज वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। इनिंग्स आ जाती हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है।
177। फर्स्ट इनिंग्स में कितने रन बनाए? रन्स इन फर्स्ट इनिंग्स 65, राइट। और सेकेंड इनिंग्स में कितने स्कोर किए उसने? रन्स इन सेकेंड इनिंग्स 75। यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज। एवरेज क्या होगा? सिंपली दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय द मैचेस प्लेड, 140 अपॉन 2। आंसर कम्स आउट टू बी 70. So what will be your answer? Your answer is 70. Question number 178. What least number should be added to 89 to make it a perfect square? ठीक है, यहीं पे देख लो इसको। 89 में हम क्या ऐड करें टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, ऑप्शंस लेते हैं। अगर आप 89 में 13 ऐड करोगे, इफ यू डू 89 प्लस 13 12, क्या 102 परफेक्ट स्क्वायर है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रिजेक्ट। 89 में 4 ऐड करोगे, विल बी गेटिंग 93, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 89 में 12 ऐड करो, 101, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 89 में 11 ऐड करो, 100, इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10, सो दिस विल बी योर आंसर 11, राइट। ओरली भी करते हैं क्वेश्चंस को, प्लीज बी इन द हैबिट। ये नहीं है कि फिर से कॉपी पेन ले लिया और यू जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ पेन। नो, यू हैव टू सॉल्व सच क्वेश्चंस orally. Is that okay? Next is the ratio between water and alcohol in a mixture is 2:3. If water content is 4 liters, how much is the alcohol in the mixture? Okay. Question number 179. What is given to you? वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर दिया हुआ है 2:3। वाटर इज टू अल्कोहल इस रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। और वाटर दिया हुआ है आपको 4 लीटर्स। तो जब एक की वैल्यू पता है तो दूसरी की, तो वाटर हमारे पास कितना हो जाएगा? लेट वाटर क्वांटिटी, वाटर का कंटेंट होगा 2x, अल्कोहल का होगा 3x। अब यहाँ भी वाटर कंटेंट गिवन है 2x, यहाँ पे वाटर 4l है, सो यू कैन इक्वलाइज देम। x कम्स आउट टू बी 2, सो अल्कोहल कितना आएगा आपके पास? 3x, 3 into 2, 6 liters of alcohol. So what will be your answer? Your answer will be 6. Okay. Moving on to question number 180. If you have any doubt, please let me know in the comments below. I'm telling you again and again, please don't feel shy while posting the comments. Just let me know कि in which question you people are having doubt. I'll solve it to you in the next video. Next question number 180. Question number 180 deals with find the HCF of 36 and 40. HCF निकालना है 36 and 40 का। I am doing question number 180 here. Question number 180. You need to calculate the HCF of
36 and 40, right? So calculate the factors of 36. Calculate the factors of 40 and then HCF. 2, 3, 2, 3. What are you getting? 2, 2 and 3, 2. Two, 2, 2, 2 power 3 and 5 power 1. What will be the HCF? 2 power 2. 4 will be your answer. यही तो HCF होगा ना, लीस्ट पावर लेते हैं. So what will be your answer? Your answer will be 4. Moving on to next, find the place value of 5 in 70504. 70504 है, ये पॉइंट में नहीं है नंबर. यू नीड टू फाइंड द प्लेस वैल्यू. ठीक है, 70504 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी बताओ. Number is given to you as 70504. 5's place value. What will be the answer? It will be 500. यही तो होगी. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. यही तो होगी. तो ये किस पे रुका? 500 पे रुका. तो ये कितनी होगी? 5/100. Okay. So our answer will be 500. What will be your answer? 500. Next, there is a figured question. Just look at the figure carefully. ये फिगर है आपको, ठीक है. यू नीड टू फाइंड एंगल डी. एंगल डी है आपका ये रहा. ये आपको निकालना है इसकी वैल्यू. ठीक है. ओके. वन 182. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को. आई एम ड्रॉइंग द फिगर हियर. व्हाट इज द फिगर? दिस विल बी योर फिगर. अब एंगल्स देखो, आपको ये 60 डिग्री गिवन है. ये एंगल इज 60 डिग्री गिवन टू यू. दिस इज ए, ठीक है. दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, ये सब आपको गिवन है. नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? ठीक है, देखो, अगर एंगल ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है, अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, सो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री. लेट मी नेम द फिगर. ठीक है, आपके लिए इजी होगा. गिव इट एज ए, बी, सी. इस पॉइंट को डी ले लो. ठीक है, तो ई ले लो, इसको एफ ले लो. ठीक है, ये हमारा है. ये मैंने इनकी लाइंस को नाम दिया है जिससे आप एंगल. अब देखो, मैं आई एम राइटिंग इट हेयर. जस्ट लुक एट द फिगर, तो दिस विल बी क्लियर टू यू, राइट. एंगल ए बी सी 60 डिग्री. एंगल ए बी सी 60 डिग्री क्यों गिवन है? अगर एंगल ए बी सी 60 है तो एंगल बी सी डी कितना होगा? एंगल बी सी डी विल बी 60 डिग्री. क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स. बी सी डी कौन सा है? बी सी डी. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा? 60 डिग्री.
ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया 60 डिग्री। अब जब ये दोनों कौन सी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर है ना, स्ट्रेट लाइन पे, तो एंगल बी सी डी, नाउ एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए, ये कैपिटल सी है, दिस इज कैपिटल सी, बड़े वाला सी। एंगल बी सी डी प्लस एंगल ए, एंगल बी सी, इसको जी नाम ले लो, बी सी जी, बी सी जी इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है। बी सी डी कितना आया था 60 डिग्री, और बी सी जी कौन सा है तुम्हारा ए 180, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 60, 120 डिग्री हमारा हो गया ए। ठीक है, एंगल ए कितना हो गया मेरा 120। अब अगर एंगल ए 120 है, ठीक है, एंगल ए 120 हो गया, ओके। अब देखो, अब जो आपका एंगल, इसको एच ले लो, इस वाले पॉइंट को, ठीक है, एच। ठीक है, जो आपका एंगल बी जो है, नाउ यू कैन सी हियर एंगल बी, यानी कि ये वाला इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो बी कितना मिल गया मेरे को 60 मिल गया। अब एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको डी निकालना है ना, देयरफॉर बी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं। एंगल डी आपको निकालना है, एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, तो 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री। सो एंगल बी कितना आएगा आपका, सॉरी एंगल डी कितना आएगा आपका 120 डिग्री। तो योर आंसर विल बी 120 डिग्रीज। ऑप्शंस कट गया यहाँ पे, समझ में आया। सोल्यूशन का प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सोल्यूशन, फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो। So here we ended our today's class. Again, I would like to remind all of you, if you have not subscribed Geometry School channel, kindly subscribe it. Hit the bell icon so that each and every information related to your exam will be provided to you. You will be notified as soon as the notification comes. Press the like button. Share the video so that the video can reach out to maximum number of your friends. Again, kindly join live classes. It is for your betterment. You'll be learning a lot of things once you join the live classes. Please go visit the website as soon as possible so that you can have a brief idea about the syllabus, the strategy, how you'll be preparing for the upcoming exams, and so many things. Also, as I have told you in the starting of the video, that there is a champion batch which is targeting RMS 2022 examination. Everything will be provided. You will be having mock test for your practice. Also, teachers will be conducting the live test. Be ready, just check where you are standing. Will you be able to clear the exam, how you are preparing, and every query related to your exam. Also,
I have informed you about offline coaching with hostel facilities. Geometry School is going to start them very soon. So be regular with your practice. Kindly keep on visiting the website regularly. So next questions I'll be discussing in set 3 of the video. Till then, keep learning, keep enjoying and stay connected. Please be regular with the practice. If you have any doubt, comment me. I will help you out with the problems. But just go through all the videos that I have uploaded. Just check them out. You will have a brief idea which kind of questions are asked in your exams. And also what kind of questions the examiner is going to ask. Till then, stay safe, be connected and keep learning. Thank you.